ہیسکو کی نااہلی عمرکوٹ میں 2 محنت کشوں کی جان لے گئی. دونوں افراد کو زمین پر بکھری تاروں سے کرنٹ لگا. واقعے کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج. مظاہرین کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. حیدرآباد میں 2 مبینہ پولیس مقابلے. مارکیٹ تھانے کے علاقے اور آٹو بھان روڈ پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. 2 فرار. ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد. جھنگ میں پولیس کی کارروائی. جعلی ویزے بنا کر شہریوں کو باہر بھجوانے والے 4 رکنی گروہ کے 2 ارکان گرفتار. 491 پاسپورٹ، سٹیکرز اور جعلی سٹیمپس برآمد. مزید 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے. ملک میں خواتین سے زیادتی کا سلسلہ نہ تھم سکا. سیالکوٹ میں 5 نامعلوم افراد کی 25 سالہ خاتون کے ساتھ زیادتی. پولیس کے مطابق سڑک کنارے کھڑی خاتون کو کار سواروں نے اغوا کیا. میلسی کچہری میں انوکھا واقعہ. مقدمے کا فیصلہ خلاف آنے پر شہری کا اہلیہ کے وکیل پر تشدد. وکلاء اور شہریوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. زخمی وکیل تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل. محمد دھماکے میں شہید پاک فوج کا جوان وقاص احمد بری کوٹ سوات میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں عسکری حکام سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت. سرائے عالمگیر میں سبزی و فروٹ منڈی کچرا کنڈی میں تبدیل. ہر طرف گندے پانی کے تالاب اور کیچڑ. شیر گڑھ میں سیوریج کا ابتر نظام. گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. اور آبشاریں، چشمے، جھیلیں، دریا اور گھنے جنگلات. وادی کمراٹ قدرت کی کاریگری کا عظیم شاہکار. سیاحوں کی بڑی تعداد قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی. سہولیات کی عدم فراہمی کا بھی شکوہ. السلام علیکم. شہر شہر گاؤں گاؤں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار. سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر دیں. ہیسکو کی نااہلی عمرکوٹ میں 2 محنت کشوں کی جان لے گئی. دونوں افراد کی موت زمین پر بکھرے تاروں میں کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی. واقعے کے خلاف اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا. مظاہرین نے بتایا کہ کئی بار شکایت کی جو سنی انسنی کر دی گئی. اہل علاقہ نے متعلقہ عملے کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا. محمد دھماکے میں شہید پاک فوج کے سپاہی وقاص احمد کی نماز جنازہ آبائی علاقے بری کوٹ سوات میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں کمانڈنگ آفیسر مالاکنڈ ڈویژن بریگیڈیئر عامر صدیق، لیفٹیننٹ کرنل عاصم، میجر انس بن خلیل، ایس ایچ او شہنشاہ خان سمیت مقامی لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. سپاہی وقاص احمد شہید قومی پرچم میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. میلسی کی کچہری میں انوکھا واقعہ. مقدمے کا فیصلہ خلاف آنے پر شہری نے مخالف وکیل کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. وکلاء اور شہریوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. زخمی وکیل کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ملزم اور اس کی بیوی کے درمیان بچوں کی حوالگی کا کیس چل رہا تھا. میلسی بار ایسوسی ایشن نے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. سیالکوٹ میں 5 افراد نے 25 سالہ خاتون کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا. خاوند پیٹرول بھروانے گیا تو سڑک کنارے کھڑی خاتون کو کار سواروں نے اغوا کر لیا. زبردستی شراب پلا کر ہوس کا نشانہ بنایا اور اکبر آباد چوک میں پھینک کر چلے گئے. خاتون کو ابتدائی طبی امداد کے بعد علامہ اقبال ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیو نیوز عثمان اقبال سے. عثمان، اس افسوسناک واقعے کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. پولیس کارروائی کر رہی ہے کیا؟ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھانہ صدر کے علاقہ میں پیش آیا جہاں پر 27 سالہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. تو پولیس نے شوہر کی مدعیت میں جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا ہے اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر زہیب کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی اور پیٹرول ختم ہونے پر جب شوہر پیٹرول ڈلوانے گیا تو 5 نامعلوم افراد نے گاڑی میں خاتون کو جو ہے وہ زبردستی بٹھا لیا اور اغوا کر کے لے گئے اور زبردستی شراب پلا کر جنسی ہوس کا جو ہے وہ نشانہ بناتے رہے، جس کے بعد اکبر آباد چوک میں پھینک کر. اب دیکھتے ہیں کچھ مزید خبریں اس راؤنڈ اپ میں.
अटक में नाबीना अफराद ने नौकरियां न मिलने पर एहतजाज किया। कचहरी चौक पर रोड ब्लॉक करके इंतजामिया, पुलिस और शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। पुलिस एहलकार पर भी डंडे बरसा दिए। नाबीना अफराद ने कहा हुकूमत कोटे के मुताबिक नौकरी दे। कैपको डिवीजन में 6 एहलकारों के तबादले पर मुलाजमीन की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है, जिससे जलालपुर भटिया में सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है मुलाजमीन की कमी को पूरा किया जाए। टंडोवाला यार मेढे के चोरी और राहजनी के बढ़ते हुए वाकयात के खिलाफ दुकानदारों ने एहतजाज किया, जिसके बाइस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने कहा बदअमनी के बाइस कारोबार करना मुश्किल हो गया है। ननकाना साहब में मुजरे से दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1000 लीटर से ज्यादा गैर मेयारी दूध को तलब कर दिया। इसके अलावा दूध, दही और करियाना की दुकानों को भी चेक किया गया। नारोवाल में गैर मेयारी दूध फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा फूड की टीम के साथ मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। बड़ी तादाद में गैर मेयारी दूध कब्जे में लेकर तलब कर दिया गया और गवालों पर जुर्माने भी किए गए। हरनाई सिब्बी ट्रेन 15 साल से बंद है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। कोयला और दीगर मादनियात जो ट्रेन के जरिए जाती थी, इससे रेलवे को खासी आमदन हासिल होती थी, लेकिन अब यह खसारे का शिकार है। देखिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। सिब्बी और हरनाई के दरमियान चलने वाली ट्रेन 2006 से बंद। शहरी गुड्स ट्रांसपोर्ट और सस्ती सहूलत से महरूम हैं। ट्रेन के जरिए हरनाई से निकलने वाली मादनियात और दीगर अशिया सिब्बी लाई जाती थी, जहां से उन्हें सूबे के दीगर इलाकों तक पहुंचाया जाता था। लोग 15 बरस से बंद इस ट्रेन की बहाली के मुंतजिर हैं। 15 साल से 2006 से जो बंद है, उसके बाद से ख़ासकर जो सिब्बी का शहर है और हरनाई है, ये आसपास के जो इलाके हैं जहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट और नहीं है, जो एक ही ज़राए था रेलवे का हरनाई ट्रेन, तो उस ट्रेन के बंद होने के बाद से ये इलाका बिल्कुल वीरान हो चुका है। सिब्बी जंक्शन के स्टेशन मास्टर का कहना है ये ट्रेन बंद होने से महकमे को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये तकरीबन बंद है। 27/2/2006 से हरनाई सेक्शन बंद हुआ था, जो कि अभी तक बंद है। और यहाँ से लोडिंग होती थी ज़्यादातर कोल की और सब्जियों की। या वहाँ से जब लोड होकर आती थी तो यहाँ से मुख्तलिफ वो शहरों को जाती थी, जिसमें ख़ास तौर पे सक्कर है, डेरा मुराद है, ये सब्जियों की वजह से बहुत ज़्यादा था। बाकी कोल जो है वो हमारा पूरे मुल्क में जाता था यहाँ से। अवाम का कहना है नून लीग के दौर में ट्रैक की बहाली के लिए काम शुरू हुआ था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए। ठट्ठा का मकली कब्रिस्तान अपने अंदर कदीम तारीख समेटे हुए है। बारिशों ने कब्रिस्तान की शक्ल में सकाफती विरसे को एक खूबसूरत सियाहती मुकाम में तब्दील कर दिया है। अगर मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं तो सयाहत फरोग पा सकती है। ताज़ा गुल रिपोर्ट कर रहे हैं। कब्रिस्तान यूं तो इंसान की आखिरी आराम का समझी जाती है, लेकिन ठट्टा के मकली कब्रिस्तान को सकाफती विरसे की हैसियत हासिल है। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ ईसा खान, तरखान, जानी बेग, हरगू और उन जैसे दीगर वक्त के हुक्मरानों की कब्रें मौजूद हैं। कब्रिस्तान में जो बहुत साल की जो धूल मिट्टी जमी थी, वो कब्रिस्तान में सफा हो गई है। ऐसा तो असर कदीम वाले भी सफाई कर सकते हैं, पर जो बारिश ने की है वो कोई भी नहीं कर सकता है। सिंध में हुई बारिशों से कब्रिस्तान अब एक खूबसूरत सियाहती पॉइंट लगने लगा। हर तरफ हरियाली के अलावा कब्रों पर जमी मिट्टी भी धुल चुकी है। यहाँ सैर व तफरीह के लिए आने वाले बहुत खुश हैं। तकरीबन मैं 3 साल पहले आया था तो उतना मुझे मज़ा नहीं आया था। अभी ये है कि बरसात हुई है, कब्रें वगैरह साफ़ हो गई हैं, घास वगैरह आ गया है, तो इसी वजह से बहुत मज़ा आ रहा है। लोगों का कहना है कि महकमा आसार कदीमा का अमला इस कदीम कब्रिस्तान की मुनासिब देखभाल नहीं करता। अगर यहाँ कुछ सहूलियात फराहम कर दी जाएं तो ये एक बेहतरीन सियाहती मकाम बन सकता है। कैमरामैन सज्जाद खान के साथ ताज़ा गुल, नियो न्यूज़, ठट्टा। उधर सांगला हिल में रेलवे क्वार्टर्स इस कदर खस्ता हो चुके हैं कि उनमें रहना मुमकिन नहीं रहा, जिसके बायस वो किराए के घरों में रहने पर मजबूर हैं। वजीर रेलवे और वजीर आज़म से मुतालिबा किया है कि क्वार्टर्स की तामीर नो करके रिहाइश काबिल बनाया जाए। देखिए मोहम्मद अनीस भट्टी की रिपोर्ट। सांगला हिल का शुमार मुल्क के कदीम तरीन रेलवे जंक्शन में होता है, लेकिन महकमा रेलवे की अदम तवज्जो के बायस सांगला हिल के रेलवे क्वार्टर्स टूट फूट का शिकार हैं। एक वक्त था कि इन क्वार्टर्स में सैकड़ों मुलाजमीन रहते थे, लेकिन अब इन क्वार्टर्स की हालत ज़ार खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जिसके बायस कई मुलाजमीन किराए के घरों में रहने पर मजबूर हैं। ज्यादा वक्त क्वार्टर की खस्ता हाली के बायस कई मुलाजमीन की जान को भी खतरा लाहक है। इस साल बरसात की वजह से तमाम कॉलोनियों के जो मकानात हैं उनकी छतें टपकी और 4-4 फुट तक कॉलोनियों में पानी खड़ा रहा,
लेकिन हुकाम के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मुलाजमीन ने वजीर रेलवे राजस्व स्वाति से मुतालबा किया है कि रेलवे क्वार्टर की तमीर मरम्मत करवाई जाए ताकि इनकी ज़िंदगी महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अनीस भट्टी, न्यू न्यूज़, सांगला है। लाहौर के मेयो अस्पताल में लवाहिकीन पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने पर गवाल मंडी चौकी मेयो अस्पताल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ज़ुहैब मेयो अस्पताल सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पर काम करता है। मुलजिम अस्पताल में शिकायत करने वाले लोगों पर तशद्दुद करता था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शाहिद रिजवी से। शाहिद, बताएगा अभी ये इस मामले का क्या हल निकला है? पुलिस भी कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, ये लाहौर का मेयो अस्पताल है। यहाँ पर अस्पताल के अंदर आने वाले जो अवाम की उनको तशद्दुद करने वाले जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ज़ुहैब जो है अस्पताल में आने वाले अफराद को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिस पर इसकी ये खुद ही अपनी वीडियो बनाकर जो है इसने वायरल की थी, जिस पर इस वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद जो है इस ज़ुहैब को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का मजीद कहना है कि जो ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर था ज़ुहैब, ये शहरियों को जो अस्पताल में लोग जो फुटपाथ पर फजूल बैठे होते थे उनको पूछता था क्यों बैठे हैं, वजह मुनासिब कोई ना बता सकने पर। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी आपका। सराय आलमगीर सब्जी और फ्रूट मंडी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ गंदे पानी के तालाब नजर आ रहे हैं। दुकानदारों और खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैयद अमजद शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। सराय आलमगीर की फ्रूट और सब्जी मंडी है या कचरा कुंडी? हर तरफ गंदे पानी के तालाब और कीचड़। फ्रूट मंडी है, सब्ज मंडी है, जितों लोग सब्जियां खाते ना, फ्रूट खाते ना, तको सब्जियां। मंडी में आने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। पर रोड तो लेके तोड़ तक सारी मंडी च गंद है कि 3 साल हो गए ने इतना गंद पे है। खरीदार इंतजामिया और आड़तियों के खिलाफ शदीद एहतजाज करने पर मजबूर हैं। सैयद अमजद शाह, न्यू न्यूज़, सराय आलमगीर। पिंड दादन खान में जलालपुर शरीफ केनाल पर तामीराती काम तेजी से जारी है। फेज 3 पर लेबर कॉलोनी समेत तमाम तामीरात मुकम्मल हो चुकी हैं। तरक्याती मंसूबों की तकमील से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए सलीम बागड़ी की रिपोर्ट। पिंड दादन खान में नहर की तामीर, काश्तकारों के ख्वाब की ताबीर। बाआसानी पानी की फराहमी से किसान भी हुए मुतमईन। गंदम की पैदावार में इजाफे के साथ साथ शहरी आबादियों को पीने का साफ पानी भी मुयसर होगा। अब साड़ा इलाका बड़ा बंजर और वीरान आ। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया कि साढ़े इलाके के विचों नहर कट रहे हैं। नहर की तामीर से इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। बुनियादी मामला ये है कि इसके न सिर्फ फ़वाद में काश्तकारी के लिए बहुत से फ़ायदे होंगे, इसके अलावा हमारे इलाके में स्पेशली जो थल का इलाका है उसमें पानी की शदीद किल्लत है, पीने के पानी की, इस्तेमाल के पानी की, तो वो वाले मसाइल भी हमारे इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। इसके मेन हमारे एक्विजिशन है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसके इन्होंने बनाए थे, हमारे जो बैच बनाए थे, बैच वाइज एक्विजिशन हुई थी, वो सारी कंप्लीट हो गई। एक्विजिशन इसकी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई है। किसानों का कहना है कि नहर से न सिर्फ हमारी ज़मीनें सैराब होंगी बल्कि गंदम की पैदावार में भी खातिर खाह इजाफा होगा। कैमरामैन मुंतजिर मेहदी के साथ सलीम बागड़ी, नियो, पिंड दादन खान। टंडो अल्लाह यार में नसीर केनाल का वाहिद पुल है जो कराची से थर 0 पॉइंट को मिलाता है। 1931 में तामीर किया गया पुल टूट फूट का शिकार है। अगर ये पुल टूट गया तो 5 लाख शहरी आबादी को डबो सकता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू सैयद गुलाम हैदर बुखारी से। जी गुलाम, बताइएगा। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो लियार के नसीर कैनाल के पुल पर, जिसे साइफन पुल के नाम से 1931 में तामीर किया गया था। ये पुल जो है इसमें से जब ट्रेन गुजरती है तो पानी की सतह से 8 फुट के नीचे से गुजरती है। ये वाहिद पुल है जो कराची से 0 पॉइंट को मिलाता है। ये जो है इस वक्त टूट फूट का शिकार है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए अब इनसे जानते हैं। अगर ये पुल यहाँ से टूट गया, शहर में पानी आया, तो ये 10 दरी से बंद होता है। 10 दरी ओडेरोलाल पे, अगर जब तक उसको ओडेरोलाल से बंद करेंगे ज़्यादा पानी है, टंडो बिल्कुल डूब जाएगा। तो डूबने के सूरत में इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं होगा या यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे होगा या जिला गवर्नमेंट होगा? इन्होंने जो है आजम सवाती मिनिस्टर रेलवे से मुतालबा किया है, इरिगेशन सूबाई मिनिस्टर से भी इन्होंने मुतालबा किया है कि इस पुल को फौरी तौर पर तामीर नौ की जाए ताकि बड़े हादसे से बचा जा सके। जी, शहर शहर गांव गांव से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खुशाब में पेशावर भिखारियों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। डीपीओ ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। थाना खुशाब पुलिस ने पेशावर भिखारियों के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्हें फौरी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पेशावर भिखारियों ने खुशाब जोहराबाद में अपने गिरोह बना रखे हैं जो दिन रात भीख मांगते हैं। फैसलाबाद में कोरोना की चौथी लहर, तालीमी इदारों की बंदिश ने तलबा और वालिदैन को परेशान कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस में छोटे बच्चों को समझने में मुश्किलात का सामना है तो वहीं वालिदैन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जवेरिया नज़ीर रिपोर्ट कर रही हैं। फैसलाबाद में कोरोना की हालिया लहर, तालीमी इदारे एक बार फिर से बंद हो गए। ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों और उनके वालिदैन को मुश्किलात से दो चार कर दिया। छोटी क्लासेस के तुलबा कहते हैं ऑनलाइन क्लास में उन्हें समझने में मुश्किलात पेश आती हैं। कोरोना की वजह से हमारे स्कूल ऑफ हो गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। कभी ऑनलाइन क्लासों की समझ आ जाती है, कभी नहीं आती। दूसरी जानिब इस सूरत हाल से वालिदैन भी परेशान हैं। कहते हैं स्कूल बंद होने के बावजूद भारी फीसें देने पर मजबूर हैं। अभी स्कूल खुले थे, चंद दिन रहे हैं, फिर बंद हो गए हैं। अभी कह रहे हैं नेट लगवा के दिया है, ऑनलाइन क्लासें हैं, बच्चों को कुछ समझ भी नहीं आता, ना कुछ पढ़ सकते हैं। इधर बहुत टेंशन है। वालिदैन और बच्चे तालीम के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। बच्चे कहते हैं पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। कोरोना की आड़ में तालीमी इदारे बंद होने से जहां तुलबा को अपनी तालीम को जारी रखने में मुश्किलात का सामना है, वहीं ऑनलाइन क्लासेस के लिए महंगाई के इस दौर में अखराजात बढ़ने पर वालिदैन भी परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। इसके साथ ही शहर शहर गांव गांव की खबरों से इतना ही। मज़ीद अहम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो।